Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT and this is our 15th lecture of chapter 3rd trigonometric function. तो ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो वीडियोस लेक्चर है वो मेरे चैनल पे अपलोड है तो वो जाके देख सकते हो. एंड फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो कंसेप्ट है इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है. तो इसमें साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज. फॉर द साइन of the trigonometric function, consider क्वाड्रेंट वाइज. जो कार्टेशियन सिस्टम है हमारी, क्वाड्रेंट वाइज हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस है वो कैसे चेंज होंगे, एंगल वाइज या फिर बोल सकते हो क्वाड्रेंट वाइज. कंसिडर अ फंक्शन, कंसिडर अ सर्कल विच इज यूनिट. ठीक है, यूनिट सर्कल मीन्स विच हैविंग रेडियस 1. यूनिट सर्कल with center origin. Suppose this is the सर्कल. एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश कोऑर्डिनेट है और ये वाई डैश कोऑर्डिनेट है. ठीक है. सपोज दिस इज द यूनिट सर्कल विच 1 0. ये पॉइंट है ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट 0 1. दिस पॉइंट इज -1 0 पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0 -1. ये तो क्लियर है. ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी डी पॉइंट है मान के चलो. एंड दिस रेडियस इज 1. इज इट? दिस रेडियस इज 1. let let us consider a angle x made by some point p. सपोज ये पॉइंट है a, b. यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स है. तो ये इसके साथ जो है एक्स एंगल बना रहा है. एक्स एंगल मीन्स एक्स रेडियन. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज एक्स. दिस पोर्शन लेंथ ऑफ द आर्क इज एक्स. सो एक्स रेडियन है. एंड सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू ऑन एक्स एक्सिस. दिस इज o origin. And suppose this is the minus x angle. This means this will be the same median, है ना. तो इसका जो मीडियन आएगा वो क्या होगा, ये सेम होगा दोनों के लिए, यम यम. नाउ describe this diagram. Let us suppose this point p random point in on the circumference of the circle. ये ऐसे ये सब डिस्क्राइब कर सकते हो आप. ये डायग्राम तो समझ में आई होगी, है ना. देन this will be the cos x, this will be the sin x, है ना. अब जब पॉइंट यहाँ पर है तो ये क्या होगा, cos x. दिस विल बी द sin x फॉर पॉजिटिव एंगल. फॉर पॉजिटिव एंगल cos x इज इक्वल टू a, है ना. एंड sin x इज इक्वल टू b. नाउ व्हाट हैपेंस फॉर द नेगेटिव एंगल. मान के चलो ये cos ऑफ माइनस x निकालना है हमें. बट cos ऑफ माइनस x हियर, दिस पॉइंट विल बी द सेम डिस्टेंस, तो वही होगा a. दिस विल बी द a, दिस विल बी द b minus b. This is a. So a comma minus b will be the coordinates of this q point. So cos of minus x will be the a, and this means this implies cos of minus x is equal to क्या होगा, cos x. And sin of minus x is equal to minus b. This implies sin of minus x is equal to minus sin of x. So keep in mind this cos function is even function and sine function is odd function. That's why it omits this negative sign and this ये क्या होगा, ये निकल जाएगा ना नेगेटिव साइन को. सो दिस इज अबाउट basic trigonometric function sine and cos. Now we will discuss other trigonometric ratios or trigonometric functions related to this sine and cos. What about that?
then for tan x cot x comma sec x and sin x cosec x. Okay, so now consider the table for this first quadrant, second quadrant, third quadrant, and this is fourth quadrant. Suppose these are the functions, trigonometric functions. Sin function है यहाँ पे, cos function है, इसके sin मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, sin according to this, sin x cos x tan x cot x sec x and this is cosec x, is it? So for this, so for sin x in the first quadrant, a is sorry b is positive, that means the second coordinate, that is b, this length for the point p, this means this is positive in the first quadrant. For the second quadrant, this is again positive. For the third quadrant, this quantity is negative, that means y is -1 here. So second coordinate जो होगा, second coordinate will be negative in the third quadrant, so negative negative, है ना? So ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा. Similarly for the cos x will be positive in the first quadrant but negative in the second quadrant. Why? Because x negative here, so negative, this is negative in third quadrant also and positive in the fourth quadrant, because we seen here this cos of minus x here. Now tan x sign changes according to the sin x and cos x, because tan x is the ratio of sin x and cos x, sin x divided by cos x, so it is positive, this is negative. According to that it will change, this is positive, negative will be positive here and this is negative. Cot x sign same as like tan x, that is negative, positive and negative. For sec x, this is 1 divided by cos x, that means it cos x sign will be changes according to the cos x, that is positive, negative and positive, and cosec x sign changes according to the sin x. So this is positive, this is negative, this is negative. Now we will discuss about the domain and range of the function. So we know the domain of this sin function x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कंसिडर हो रही है, x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, एंगल इट मे बी 90 डिग्री, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 90 डिग्री एग्जैक्टली, दिस इज पाई, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई अगेन विच इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन. सो दिस इज सेम पीरियोडिकली गोइंग ऑन, दैट मीन्स 2 पाई के बाद फिर से एंगल आते जाएंगे, दैट मीन्स 0 टू 90 के अंदर जितने सारे वैल्यूज है एक्यूट एंगल, वो सारी वैल्यूज इसमें कंसिडर करेगा. तो x की वैल्यू कोई भी ले लो, साइन x क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, साइन x इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1, बिकॉज ये रेडियस को तो एक्सीड नहीं करेगा, मतलब साइन फंक्शन हो या फिर कॉस फंक्शन हो, ये रेडियस को तो एक्सीड करके नहीं जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस b एंड a डज नॉट एक्सीडेड दिस पोर्शन यूनिट सर्कल के. सो इसके बारे में क्या ख्याल है, we already know that sin square x plus cos square x is always equal to 1. So sin x जो है this is always in between -1 वैल्यू कंसिडर कर सकता है ना, -1 that point -1 and 1. Also for cos x is less than or equal to -1, less than or equal to 1. So this is range. Now x हम वैल्यू कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, hence domain of cos x and sin x will be set of real numbers, set of real numbers. तो
जितने सारे सेट ऑफ रियल नंबर से वो वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर और रेडियन का मैंने रिलेशन बताया था। तो रेडियन जितने सारे होंगे ये पाई बाय टू पाई, ये वैल्यूज क्या है आखिरकार आर ही है, मतलब रियल नंबर ही है, क्योंकि पाई इज इक्वल टू क्या होता है 22 डिवाइडेड बाय 7, पाई बाय टू क्या होता है 22 डिवाइडेड बाय 7 टू द 14 आ जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते जाएंगे और ये रियल नंबर ही है। तो किसी भी रियल नंबर के लिए ये वैल्यूज -1 to 1 में ही आएंगी। नाउ वी विल सी डोमेन एंड रेंज फॉर दिस अदर फंक्शंस। अब बाकी के फंक्शंस के जो साइंस है, सॉरी डोमेन और रेंज है, वो चेंज होते जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे दिक्कत दे रहे हैं हम क्या करते हैं वो वाले पॉइंट मतलब डोमेन में से निकाल लेते हैं। अब किसी फंक्शन को एक पॉइंट दिक्कत दे रहा है, ठीक है, खराब कर रहा है उस फंक्शन को, तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट को निकाल लेंगे डोमेन से। तो वही करेंगे यहाँ पर भी। अब tan x क्या होता है, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब बताओ अगर cos x इक्वल टू जीरो आएगा, cos x इक्वल टू जीरो आएगा तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत देगा, मतलब साइन x डिवाइडेड बाय जीरो डज नॉट डिफाइन है ना, डज नॉट डिफाइन। तो हम क्या करेंगे ऐसे सारे x रियल नंबर में से, अब इसका डोमेन देखो, डोमेन इज इक्वल टू ऐसे सारे x निकाल फेंकेंगे, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सच x, बट ऐसे x निकालने हैं जो कि x नॉट इक्वल टू कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जब भी कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है तब क्या होगा ये 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू देन इट इज जीरो। तो ये नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे वाले पॉइंट सारे निकाल फेंक रहे हैं, x नॉट इक्वल टू दैट बट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये है डोमेन ऑफ दिस tan x, रेंज ऑफ दिस tan x। अब रेंज देखो, रेंज के लिए यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको। अब साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स क्या है, cos x is from -1 to 1, sin x is from -1 to 1। अब देखो sin x और cos x के लिए जब भी ये वैल्यू -1 to 1 में आ रही है, -1 to 1 में आ रही है, साइन की कौन सी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग sin x डिवाइडेड बाय cos x इन्फिनिटी निकल के जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी इसमें आएगा भी नहीं, इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे cos x जीरो की ओर जा रहा है, ये इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है। तो इसका जो रेंज आएगा, रेंज इज जीरो निकाल रहे हैं, मतलब हम वैसे पॉइंट निकाल रहे हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगा। I think so। मान के चलो कोई वैल्यू है पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी डिवाइडेड बाई क्यू डैश के फॉर्म में, पी क्यू डैश डिवाइडेड बाय क्यू पी डैश, ऐसे वैल्यूज आएंगी, तो ये वैल्यू कंसिडर होगी। अब सिमिलरली कॉट एक्स के लिए देखो, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, बट साइन एक्स कहाँ पे दिक्कत दे रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल n पाई, n बिलोंग्स टू, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर करो, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये जब भी हो रहा है पाई के मल्टीपल में आ रहा है तब साइन जीरो हो रहा है, दैट मीन्स कॉट, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी x such that x is not equal to n पाई, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये आएगा डोमेन, और सिमिलरली इसका रेंज आएगा सेट ऑफ रियल नंबर। सेक एक्स और कोसेक एक्स के लिए, सेक एक्स, सेक एक्स इज नथिंग बट द वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, बट कॉस एक्स जब भी जीरो हो रहा है इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन इज सेम एज द tan, डोमेन इज सेम एज tan x, बट रेंज क्या होगा, अब रेंज के लिए देखो, ये 1 डिवाइडेड बाय cos x है, cos x कंसिडर्स वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, दैट मीन्स
1 डिवाइडेड बाई पी के फॉर्म में ही वो वैल्यू है। तो ये -1 to 1 में कोई भी वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है, -1 to 1 में, बट -1 और 1 कंसिडर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि cos x की अगर वैल्यू 1 है तो 1 कंसिडर करेगा, -1 है तो -1 कंसिडर करेगा, बट -1 to 1 में स्ट्रिक्टली वो वैल्यू कंसिडर ही नहीं करेगा। दैट मीन्स हम अगर रियल नंबर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे -1 to 1, ये ओपन सेट, ये सेट क्या है एक्चुअली, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x such that x does not belongs to -1 to 1 ओपन इंटरवल। और सेम आपके लिए टास्क है, कोसेक एक्स का आप डोमेन और रेंज निकाल लोगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मैथ बडी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स।